Good afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to all at the presentation of the 28th IMC Ladies Wing. We gather here today to acknowledge and celebrate the spirit and dedication of late Srimati Janki Devi Ji Bajaj, and in honor of that spirit, recognize the same light in others. I extend a very warm welcome to our respected chief guest, Mr. Shikhar Bajaj, Chairman and Managing Director, Bajaj Electricals Limited. Thank you very much, sir, for being with us here in person today. We are pleased to welcome our awardee, Ms. Durga Mallu Gudilu. Thank you, ma'am, for accepting this award and being with us here today. I now request Mrs. Nishreen Khurakiwala, our President of the Ladies Wing, to come and present her welcome address. Welcome to the 28th IMC Ladies Wing Janki Devi Bajaj Puraskar for the year 2021. We are honored to have Mr. Shekhar Bajaj presiding over as the chief guest for the Puraskar this year. With his and Mrs. Kiran Bajaj's unstinting support, the Janki Devi Bajaj Puraskar has become a mascot for the Ladies Wing in the country's hinterland, broadcasting the ideals and philosophy towards encouraging and supporting women to achieve their full potential. The Ladies Wing is honored to host the event. Trailblazer, Empowered Women, Empower Women, is the IMC Wing's motto for the year. And Durga is a trailblazer in every sense of the word. Let's applaud the Janki Devi Bajaj Puraskar winner for 2021, Durga Mallu Gudilu. Meri Jeevan Yatra is the autobiography of Srimati Janki Devi Ji Bajaj. It was first published by Sasta Sahitya Mandal in 1956. The IMC Ladies Wing was privileged to release the English version of this book, My Life's Journey, in 2019. We are pleased to announce that today we will release the fourth edition of Meri Jeevan Yatra, the Hindi Atmakatha. I request Shri Shekharji Bajaj, Ms. Durga, Srimati Nishreen Khurakiwala, Srimati Radhika Nath ji to please formally release this fourth edition of the book, Meri Jeevan Yatra. Bajaj Electricals Limited, an integral part of India's leading Bajaj Group, have instituted and supported the Puraskar for an uninterrupted 29 years. The Puraskar has now assumed considerable national importance. Instituted in 1992-93, the Puraskar is awarded to a deserving candidate who is carefully and judiciously picked from a host of contenders by a panel of judges. Our panel of eminent advisors has worked diligently to declare this year's winner. Let us appreciate their valuable contribution as I introduce them to you. We are truly obliged that all our eminent advisors, despite their very busy schedule, have given their valuable time to serve on the panel as advisors for the Puraskar this year. The winner of IMC Ladies Wing Janki Devi Bajaj Puraskar 2021 is Durga Mallu Gudilu. May I request our Honorable Chief Guest, Shri Shekharji Bajaj, to present the Puraskar to Ms. Durga. The award comprises of a cash award of Rs 10 lakhs, a citation and a certificate. I'd like to invite Ms. Durga to say a few words and share a few glimpses of her journey with us today. सभी को मेरा नमस्कार। मैं शेखर सर का और आईएमसी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इस अवार्ड के लिए, इस महान व्यक्ति के अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। और वो एक फाइटर थी और कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है या लकीली हम खुशनसीब रहते हैं, उस इंसान से जुड़ जाते हैं। तो मैं
महामानव जो अपने जानकी देवी बजाज है, उनका पुरस्कार मुझे दिया गया। और ये भी एक इतिहास में जब मेरी इतिहास लिखी जाएगी तो इनसे मेरा नाम जुड़ा रहेगा। और मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगी। मैं वैदू कम्युनिटी से हूँ और मेरी जर्नी जो है मैं एक सहमी सी और छोटी सी स्कूल में काफ़ी पीछे बैठने वाली ऐसी लड़की थी। और मेरा एक हाथ और पैर का पोलियो था, इसलिए मेरी मम्मी मुझे स्कूल भेजना भी नहीं चाहती थी कि ये नाजुक है या कमज़ोर है, ये नहीं कर पाएगी, मतलब ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठ पाएगी क्योंकि ये हैंडीकैप है। लेकिन फिर भी मैंने वो संघर्ष स्वीकारा और मैं बाकी बच्चों की तरह ही पढ़ी। और पढ़ाई करते करते बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कि हम बाकी लोगों से अलग है। मुझे पता है कि मैं जब छोटी थी और मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और मेरे स्कूल का एक फ्रेंड था और उनके घर पे ही मैं भीख मांगने गई थी और उसने दरवाज़ा खोला और मैं भीख मांगते हुए खड़ी हूँ। ये जो देखा उसने तो मैं फटाक से वहाँ से भागी। और भागने के बाद मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैं अपने एक फ्रेंड के पास ही भीख मांगने गई और तब से मैंने भीख मांगना छोड़ दिया। और ऐसे कितने सारे बच्चे रहेंगे जो नहीं चाहते हुए भी भीख मांगते रहेंगे। और वैदू कम्युनिटी में भी ज़्यादातर बच्चे और लोग भीख मांग के अपना बसेरा करते हैं। और आज भी जो कंडीशन है कोविड के बाद काफ़ी इनकी हालत ख़राब है। और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा जर्नी मेरा ऐड करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर का जो चाइल्ड मैरिज है वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मेरी सिस्टर पैदा भी नहीं हुई थी और उसकी शादी मेरे मामा के लड़के के साथ तय की गई और वो पढ़ी लिखी और वो इंजीनियर बनी और उसने मना किया इस शादी के लिए। और एक पंचायत बैठा, मतलब जैसे भटका समाज का एक जात पंचायत है, जैसे हम हरियाणा वगैरह उस टाइप देखते खाप पंचायत, तो उस तरीके से एक जात पंचायत बिठाया गया और हमें समाज से बाहर निकाला गया। और समाज से निकालने का कारण ये था कि हमने एजुकेशन लिया, हम पढ़े, हम सवाल करने लगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें बहिष्कृत किया गया और हमें 3 लाख रुपए का दंड भरना है आपको, तो ऐसा कहा गया। हम शुरू में 25,000 रुपया उनको दिए, फिर बाद में मुझे लगा ये गलत है, जो मैंने पढ़ाई किया है उस सिस्टम में ये सिस्टम है ही नहीं, ऐसा मुझे लगा। और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला नहीं, समाज के साथ रहना है हमें, कल को आप लोगों से शादी कौन करेगा, आपको समाज से निकाला जाएगा। तो ये जो फाइट था वो काफ़ी संघर्षमय था और बहुत ही मेरे परिवार को उसका सामना करना पड़ा। लेकिन ये फाइट करते वक्त बहुत सारे लोग, मीडिया मुझे सपोर्ट कर रही थी, जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से वो सिस्टम चल रहा था। और ये एक पैरेलली जो जात पंचायत करके एक अलग से एक सिस्टम चल रहा था। और उस वक्त हमने मतलब फ़ाइट किया उस जात पंचायत के ख़िलाफ़। और मैंने कभी क्रोध से उनसे बात ही नहीं किया। मैंने उस पंच लोगों को बोला, आप मेरे हो, मेरे समाज के हो, मैं आपके समाज की हूँ। आप में जो अघोरी रूढ़ी परंपरा है, जो गलत रूढ़ी परंपराएं चल रही है, जैसे पंचायत में महिलाओं को बैठने नहीं देना, महिलाओं को कम समझना, महिलाओं के हित में बात नहीं करना, इसके विरोध में मेरा फाइट है। और ये गलत है क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि महिला एक समान है। हम समानता की बात जब करते हैं वहाँ पे स्त्री या पुरुष नहीं हो सकते, वो समान हो सकते। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मेरे बुक्स में पढ़ी थी और मुझे वो सही लग रहा था, ये बात सही है कि हम समान हैं। तो यहाँ पे मेरे कम्युनिटी में ऐसा ऊंच नीच क्यों है, ये काफ़ी सवाल मेरे मन में रहते थे। और 2013 में वो फाइट हुई कास्ट पंचायत के खिलाफ। और वो फाइट मतलब क्रोध से नहीं, मतलब अच्छे से मैं जीत पाई। और सभी लोगों ने, सभी जो जात पंचायत में बैठते थे, सभी ने निर्णय लिया कि हम जात पंचायत बंद करेंगे। और महाराष्ट्र की पहली जात पंचायत जो हुई है वो वैद्य समाज की हुई है और वो मैंने की है। और जब जात पंचायत बंद हुआ उसके बाद 65 महाराष्ट्र की जात पंचायत बंद हुई और बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया और इसका कायदे का भी स्वागत किया। तो 2015 में ये इशू आने के बाद मेरे दिमाग में आया कि ये कम्युनिटी क्यों ऐसा है।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पढ़े, मेरी सिस्टर पढ़ी, मैं पढ़ी, तब जाके हमें समझा कि ये गलत हो रहा है। और इसीलिए आज भी हमें एडमिशन लेना है कॉलेज में, हमारे बच्चों को हमें नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बना के देना पड़ता है। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम क्रिमिनल नहीं होते हुए भी हमें सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि हम क्रिमिनल नहीं है। तो इस तरीके से इस कम्युनिटी का जो है वो रहा है। और दूसरा कि आज मैं इस कम्युनिटी में 3 लाख लोगों की लीडर हूँ। और उन्होंने महाराष्ट्र वैद्य विकास समिति की प्रेसिडेंट भी मुझे ही बनाया। तो इसीलिए वो जो स्वीकारना है वो जल्दी स्वीकारे भी। और आज ये पूरी चीज़ें हम लोग साथ में मिल के करते हैं और मैं पूरे महाराष्ट्र में काम करती हूँ। और एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मैंने कोविड में उनको दिया, क्योंकि मैंने पूरे महाराष्ट्र में कोविड में जो प्रॉब्लम्स आई, जो लीडर्स को काम करना चाहिए वो मैंने कर दिखाया। और मैंने जितने भी वैद्य कम्युनिटी या ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं पूरे महाराष्ट्र में, और सभी जगह मैंने कोविड में उनको अनाज, सैनिटरी पैड, नैपकिन्स, सैनिटाइज़र्स, ये सभी चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया। और एक बात कि गए साल गीतिका मैम का बर्थडे था और उन्होंने वैद्य कम्युनिटी की 40 गर्ल्स को स्कॉलरशिप दिया। तो बजाज का जो हमारे साथ सफ़र रहा है वो हमेशा ऐसे ही रहे। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ, जिस कम्युनिटी में रहती हूँ, मैं डेफिनेटली वहाँ पे चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे जीने का जो भी वजह है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया है, मैंने कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है। तो वो भले पैसा ना हो, लेकिन हम किसी को जाके गले भी लगाए, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है। और बजाज ने मुझे इस पुरस्कार के लिए और एक महान व्यक्ति का पुरस्कार मुझे दिया, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। और अपना मुझे अभी तक के 82 अवार्ड्स मिले, ये मेरा 82 अवार्ड है। और मैं बहुत कुछ आपके साथ काम करके भी सीखूंगी और आप हमेशा हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। वैद्य कम्युनिटी बहुत छोटा है, मेरी एक कोशिश है कि इस कम्युनिटी को कुछ तो दस्तावेज में आने वाली पीढ़ी को दूं। और मुझे पता है जो 50 या 60 साल के लोग हैं, मैं उनको नहीं बदल सकती, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनके जो अनुभव है, वो बदलना काफ़ी क्रिटिकल है। लेकिन मैं ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकती हूँ, आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारा मेरा सपना करके जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बच्चों के सपने हैं, उस प्रोजेक्ट के अनुसार हमने 1 साल कंप्लीट किया मेरा सपना का प्रोजेक्ट। आज 450 बच्चे उस प्रोजेक्ट में आते हैं। और मैं जब एरिया में जाती थी, मुझे सब बच्चे जुगार खेलते हुए दिखते थे, और मैं अलग अलग ग्रुप में बच्चे जुगार खेल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, मेरे कम्युनिटी के बच्चे क्या कर रहे हैं, और एक दूसरे को गाली देना, मतलब ऐसे सब माहौल में आज आप अगर जाओगे, वहाँ पे ड्राइंग चलता है, वहाँ पे क्राफ्ट चलता है, वहाँ पे डांस प्रैक्टिस चलती है, वहाँ पे एक्सरसाइज चलता है, वहाँ स्पोर्ट्स चलता है। ये जो चित्र बदलने का काम जो हमने किया है वो काफ़ी बेहतरीन है। और मुझे लगता है कि उसमें से ही कुछ डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, दुर्गा भी उसमें से निकलेंगे। शायद वो इस जर्नी को, इस विचारों को आगे लेके जाएंगे। और मैं जब उनसे जो भी डोनर्स आते हैं तो पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, उसमें से कुछ लड़कियां बोलती है हमें दुर्गा दीदी जैसा बनना है। गए साल मेरी मम्मी कोरोना में ऑफ हुई और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई थी, और डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मम्मी की यादें आ रही है, डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है, तो मैंने फटाक से आंसर दिया, मुझे बच्चों में रहना अच्छा लगता है। तो मैंने मेरा सपना वहाँ से प्रोजेक्ट शुरू किया, और आज मैं मेंटली बहुत ही प्रिपेयर हूँ। और मेरी दवाई वही थी, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी के अनुभव ये सबसे बड़े रहते हैं और इंसान अनुभवों से सीखता है। और मैं लोगों के अनुभव सुनना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अनुभवों से हम भी कुछ सीखते हैं। और एक अच्छा इंसान बन के जीऊँगी, इतना तो श्योर है। और आज मुझे जो धनराशि मिली है वो मैं 2 साल पहले मेरा कैटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट हुआ था महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, और वो कोविड में स्टॉप हुआ, और मैं इसको रीस्टार्ट करने का
कोरोना के इस पीरियड के बाद रीस्टार्ट करने का मैं काम करने वाली हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में रोज़गार का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं है कोविड में। और उसी के साथ इस धनराशि का मैं एजुकेशन के लिए यूज़ करूँगी। जो हर समाज को अगर परिवर्तन करना है तो सभी लोगों ने, बड़े लोगों ने कह के गए कि एजुकेशन के अलावा कुछ पर्याय नहीं है। अगर वो परिवर्तन हो सकता है तो वो एजुकेशन से हो सकता है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगी एजुकेशन पे और काफ़ी बच्चों को इस धनराशि से पढ़ाऊँगी। अभी भी 20,000 जो बच्चे हैं जो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे, तो मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का ज़िम्मा हम सब मिलकर करें। और शायद इसी में से कुछ बच्चे निकले, और मुझे लगता है कि इसमें से ही कुछ बच्चे निकलेंगे और हमें उनको देख के शांति मिलेगी कि ये बच्चे को हमने पढ़ाया। और मुझे जानकी देवी बजाज इस महान व्यक्ति का पुरस्कार दिए, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। I heartily thank you. Thank you, sir. Shri Shekharji Bajaj is the Chairman and Managing Director of Bajaj Electricals Limited. He has been the past President of IMC, ASSOCHAM and Alcoma. In the year 92-93, Srimati Kiranji Bajaj, under her presidentship of the IMC Ladies Wing, instituted the Janki Devi Bajaj Puraskar for Rural Entrepreneurship. Her work as president that year was dedicated to the theme, Discover the Entrepreneur in You. She continues to nurture this Puraskar even now. Kiranji and Shekharji have been wholeheartedly supporting the establishment of the Janki Devi Bajaj Puraskar for the last 29 years. It is my privilege, sir, to invite you, our chief guest, Mr. Shekhar Bajaj, to deliver the keynote address for the 28th IMC Ladies Wing Janki Devi Bajaj Puraskar 2021. Mr. Bajaj. Good evening. Thank you, IMC Ladies Wing, for inviting me to this prestigious event. Firstly, I would like to congratulate Durga for this well-deserved honor. As you probably know, Janki Devi Bajaj is my grandmother, and I was fortunate to spend many precious moments with her as a child and as a young adult. There was never a dull moment around her. She hardly ever sat still and worked from daybreak to late night on some project that had impact either on her immediate community or the entire nation. When I was hearing Durga, I was remembering my grandmother, because that's what you've been doing. Since childhood, you've been working and just looking at the community at large. Hence, the IMC Ladies Wing Award becomes very meaningful as it provides the winners with the recognition and the much needed funds to augment their work. I once again congratulate you for your unparalleled effort during unprecedented times. No one was prepared for COVID-19 and the world was thrown into turmoil. But Durga showed immense leadership by reaching out to those who were most effective. I also congratulate the entire Ladies Wing team for their effort in putting this event together. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. I'd like to now bring this afternoon's proceedings to a conclusion, and thank you everyone for being with us.